Hello students, today we will continue our chapter 18, that is the pollution of air and water. In our previous videos I have given you some basic knowledge about the water, but now we will proceed further, that is the pollution of air and water. Air pollution, you must be noticing around your surroundings that so much pollution is there. What is that? That is the air pollution. So you all must be familiar about this word, that is the air pollution. Sorry. Air pollution, when the amount of toxic substances or the unwanted substances get added inside the air, that is known as the air pollution. It is very harmful for us as well as for all living things. So, firstly we will see what actually air contains. So, air contains 78% of the nitrogen, 21% of the oxygen, and rest percent is for other natural gases, that are the carbon dioxide, argon, methane, ozone, and some water vapors, some dust particles, etc. So these are the components of air. When in these components of air some other substances, or you can say some other unwanted substances, get added, and those substances are harmful for us as well as for all living things, that is known as the air pollution. So here is the definition. You can see in the red color that the addition of unwanted and it is the addition of unwanted and harmful substances in the air, or increase in the quantities of constituents of air beyond the normal level that affects the living things is called air pollution. मीन्स जो एक्स्ट्रा कंटामिनेटेड अनवांटेड सब्सटेंसेस जो हार्मफुल होते हैं फॉर लिविंग एंड द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, वो जो एयर के अंदर ऐड हो जाते हैं, दैट आर नोन एज द एयर पॉल्यूशन. So here you can see the various new words which are going to be inside this chapter. First one is the air pollution. Again, it is the same which is in this red color. Acid rain. Acid rain is one of the, due to the presence effect, it is one of the effect of the air pollution. So acid rain, as its name indicate, that rain which contain acid. So rain mixed with sulfur dioxide and nitrogen dioxide. In this chapter I'll explain this word properly, but now just keep it in mind that acid rain is the rain which contain components of acids like sulfur dioxide and nitrogen dioxide. Next one is the biological contamination. The presence in the environment of living organism or agent derived by viruses, bacteria, fungi, and mammal, birds, antigens that can cause many health effects. Means if these organisms are present in environment, and due to these organisms, microorganisms, some bad effect to our health, that is known as the biological contamination. Our next word is the greenhouse effect. So, the greenhouse effect is a phenomena whereby greenhouse gases creates a condition in the upper atmosphere causing a trapping of heat and leading to increase the surface and the lower troposphere temperatures. Means when the amount of carbon dioxide increases in our atmosphere and it increases the amount of heat in our surroundings, that is known as the greenhouse effect. Potable water means the water which is suitable for drinking purpose, that is known as the potable water.
Water pollution. Water pollution is again when the fresh water get contaminated by some harmful substances, right? So that is known as the water pollution. Means the contamination of fresh water. जो फ्रेश वाटर है वो कंटामिनेटेड हो जाता है, खराब हो जाता है. सो वाई? ड्यू टू द एडिशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस, राइट? Next one is the pollutant. Pollutants are the substances which are added in water or air to pollute it, are known as the pollutants. Basically, pollutants are the substances. वो सब्सटेंसेस हैं जो वाटर और एयर के अंदर अगर वो सब्सटेंसेस एडअप हो जाते हैं, सो उसको क्या कर देते हैं, वो खराब कर देते हैं, कंटामिनेटेड कर देते हैं. सो दो सब्सटेंसेस आर नोन एज द पॉल्यूटेंट. Global warming, when the heating effect due to the presence of the carbon dioxide, increase in the carbon dioxide, or due to the trapping of heat, if that heat increases all over a large area, like globally, that is known as the global warming. Chemical contamination means contamination होगी but due to the presence of the chemicals. केमिकल्स की प्रेजेंस से कोई भी चीज खराब हो जाना, डेट इज नोन एज द केमिकल कंटामिनेशन. क्लियर? सो दीज अबाउट द न्यू वर्ड्स. नाउ वी विल प्रोसीड फर्दर. जस्ट लुक एट दिस पिक्चर. बेसिकली इट इज अ फैक्ट्री विच इज क्रिएटिंग स्मोक ओवर हियर. दिख रहा है ना, स्मोक, धुआं निकल रहा है यहाँ पर इस फैक्ट्री के अंदर से, राइट? यही जो स्मोक है ये क्या कर रही है, ये फैक्ट्री ये पॉल्यूट कर रही है एयर को. यू कैन सी वेरी इजीली. एंड ऑल्सो अराउंड अस ऑल्सो hazy weather is there, so that is also due to the addition of the contaminated substances inside the air. Clear? So this is about the air pollution. Air pollution is also caused by the forest fire. Just look at this picture. ये फॉरेस्ट में जो है फायर लग गई है, आग लग गई है, जिसकी वजह से क्या हो गया है, एयर के अंदर पॉल्यूशन हो गया है. Isn't it? Right? Now, just look at this. दिस इज कितना स्मोक यहाँ पर जो है इकट्ठा हो गया है ड्यू टू द वॉल्केनिक एरप्शन. वॉल्केनो जो है, जब वॉल्केनो एरप्शन होता है, जब लावा निकलता है फ्रॉम इनसाइड द फ्रॉम इनसाइड द लैंड और सम ओशियन रीजन, तो वहाँ पर भी बहुत सारा जो है स्मोक और धुआं और यू कैन से द अनवांटेड सब्सटेंसेस जो हैं रिलीज होते हैं, एंड दे गेट एडेड और मर्ज्ड विद द एयर एंड दे कंटेमिनेट इट. सो ये भी क्या है, एयर पॉल्यूशन. क्लियर? आप देख सकते हैं दिस फॉरेस्ट के अंदर फायर ऑब्वियसली ह्यूमन बींग्स ने तो लगाई नहीं होगी. सो जो है ये नेचुरल है, नेचुरल डिजास्टर है. नेचुरल डिजास्टर है मीन्स नेचुरल फिनोमिना से अपने आप ही ये हुआ है. वॉल्केनिक एरप्शन में भी ह्यूमन बींग्स का और लिविंग थिंग्स का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है. सो ये भी एक नेचुरल डिजास्टर और यू कैन से इट्स अ नेचुरल फिनोमिना. सो जब नेचुरली एयर पॉल्यूट होती है तो उसको हम बोलते हैं नेचुरल रिसोर्सेज. एयर पॉल्यूशन के दो रिसोर्सेज होते हैं. द फर्स्ट वन इज द नेचुरल रिसोर्सेज एंड द सेकेंड वन इज द मैन मेड रिसोर्सेज. सो दीज टू आर द नेचुरल रिसोर्सेज, जिसके एग्जाम्पल्स वी कैन से इट एज अ फॉरेस्ट फायर, वॉल्केनिक eruption. Right? Now we will look at some other examples or some other pictures. Just look again over this picture. That is a factory polluting the air. Obviously ये natural नहीं है. इसमें this is not a natural phenomena at all. This is produced by the human being. So ये कौन सा हो गया हमारा man made resources. एयर पॉल्यूशन के कौन से हैं ये, मैन मेड रिसोर्सेज फॉर एयर पॉल्यूशन. राइट और नॉट? सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द मैन मेड रिसोर्सेज
for air pollution. Now just look at this car. This car is producing so much smoke inside the air, है ना. कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस जो है यहाँ पर रिलीज हो रही है और एयर के अंदर ऐड हो रही है, राइट और नॉट. सो ये भी नेचुरल फिनोमेना नहीं है, इसमें भी ह्यूमन बींग्स का इन्वॉल्वमेंट है. सो दैट्स वाई इट इज़ अ मैन मेड रिसोर्सेज. Because this car is invented or built by the human being, so this if the smoke caused by such equipments or vehicles or some other devices which are designed by the human beings, and if they are causing some pollution inside the air, then that will be the example of man-made resources for air pollution. Clear beta? Now just look at this picture. Smoke in the industrial city, and this smoke आप इसको पिक्चर में भी देखने की ज़रूरत नहीं है. If you look outside from your windows or houses, or if you stand over your terrace, you can easily see in your surroundings that so much smoke is there, right? ये smoke क्या है? Basically this is a pollution, ये which pollutants which are getting merged inside the air, and they combinedly form the smoke, right? Smoke or fog. Smoke और fog जब combine हो जाते हैं तो एक combined word आता है, that is known as the smog. क्लियर? जिससे हमारा जो environment है वो hazy नज़र आने लग जाएगा, हमें clearly pictures नहीं दिखेंगी, धुंधली धुंधली नज़र आ जाएंगी. क्यों? वो धुंधली क्यों नज़र आ रही हैं, वो हेजी क्यों नज़र आ रही है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द एयर पोल्यूशन. क्यों? बिकॉज जो आसपास हमारे जो फैक्ट्रीज है, सिटीज़ हैं, वहाँ से स्मोक आ रहा है. एंड मोस्ट प्रोबेबली जो ज़्यादा स्मोक क्रिएट हुआ है वो किया है, मतलब जो अभी फील्ड्स के अंदर फार्मर्स ने जो है अपने वीड्स को या जो बचे हुए प्लांट्स हैं जो उनको नहीं चाहिए हैं, अननीडेड प्लांट्स हैं, उनको उन्होंने सीधा क्या कर दिया, फायर, आग लगा दिया उनको. और आग लगाने की वजह से फायर जब होती है, कहीं हीट प्रोड्यूस होती है, तो ऑब्वियसली वहाँ से क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड. और वही दोनों गैसेस जब हैं एयर के अंदर मिक्सअप हो जाती हैं तो क्या बना देती हैं, स्मोक, राइट? Clear? So this is all about the natural and man-made resources. Now we will just look about the acid rain, and we will also study the case of the Taj Mahal. Just look into this. Have you ever visited the Taj Mahal? Most of you have visited, and every one of you have seen in the pictures, or you can say in the movies, or in some photograph. You all have seen the Taj Mahal, right? So Taj Mahal is quite white in color due to the presence of the marble stone. वो marble stone से बना हुआ है, इसलिए वो white है और bright है. But nowadays और from last many years वो ताज महल जो है वो हल्का सा white ना होके starting converting into some yellowish substances. क्यों? Why? Due to the presence of the acid rain. क्यों? Why? What is acid rain? Acid rain जब हमारे environment के अंदर pollution होता है, like this जो अभी भी है pollution, जब ऐसा pollution होता है कि नाइट्रोजन के कुछ compounds होते हैं हमारी air के अंदर, और कुछ सल्फर के कंपाउंड्स होते हैं, स्पेशली नाइट्रोजन के कंपाउंड्स है, सल्फर के कंपाउंड्स है. अगर वो पॉल्यूटेंट हमारे एयर के अंदर हैं और तब अगर वहाँ पर बारिश हो जाए, रेन हो जाए, तो वाटर के कंपोनेंट्स भी उसके अंदर ऐड हो गए, यानी कि सल्फर और यू कैन से दिस नाइट्रोजन के कंपाउंड्स तो थे ही उसके अंदर, लेकिन अब वाटर भी आ गया है, ऐड हो गया. तो जब वाटर ऐड अप हो जाता है नाइट्रोजन और सल्फर के साथ, तो वो कंबाइन होकर बना लेता है एसिड. और वो कौन सा एसिड बनता है? सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, H2SO4 एंड HNO3. और ये दोनों ही सब्सटेंसेस, दोनों ही कंपाउंड्स क्या हैं? एसिड्स हैं. जब ये एसिड हमारे
एयर के अंदर फॉर्म हो जाता है, फिर वो वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में इस मॉन्यूमेंट के ऊपर गिरता है, दैट इज़ द ताजमहल। तो जो मार्बल्स हैं वो भी केमिकल से बना हुआ है और उसके ऊपर क्या होने लग जाती है, केमिकल रिएक्शन। और केमिकल रिएक्शन होने की वजह से व्हाट हैपन, बिकॉज ऑफ दैट केमिकल रिएक्शन वो जो कलर है ताजमहल का वो पेल येलो में कन्वर्ट होने लग जाता है। सो दिस इज द केस स्टडी ऑफ द ताजमहल। क्लियर? सो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो ऑर्डर दिए हैं कि ताजमहल जहाँ पर है वहाँ उसके सराउंडिंग्स जो भी यानी कि इंडस्ट्रीज़ हैं वो क्लीन फ्यूल यूज़ करेंगी, डेट इज़ द CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और द यू कैन से द LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इन वहाँ पर जो व्हीकल्स हैं वो ये वाला फ्यूल जो है यूज़ करेंगे उसके सराउंडिंग्स में। क्यों? क्योंकि ये दो ऐसे फ्यूल्स हैं जो कि एयर को पॉल्यूट नहीं करते। मीन्स जब ये बर्न होते हैं तो इनके अंदर से पॉल्यूशन नहीं निकलता। Isn't it interesting? सो इसलिए वहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिए हैं कि ताजमहल को और उसको सेव करने के लिए उसकी ब्राइटनेस को रखने के लिए, ताकि वहाँ पर मॉन्यूमेंट के अंदर रिएक्शंस ना हो, उसकी जो ब्यूटी है वो ख़राब ना हो, तो इसलिए उसके सराउंडिंग्स में आसपास के एरिया में जो भी व्हीकल्स वहाँ पर रन करेंगे वो कौन से फ्यूल पे रन करेंगे, दे विल रन ऑन द CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और बहुत बार ऐसा दिल्ली में भी हो जाता है कि दिल्ली में सिर्फ और सिर्फ CNG की जो है गाड़ियाँ रन करेंगी। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि ये वो फ्यूल है बेटा जो पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करता एयर के अंदर। क्लियर? ठीक है। सी दिस, लुक एट दिस पिक्चर, दिस इज द पॉल्यूशन अराउंड द ताज महल। सी हाउ हेजी इट इज लुकिंग। हेजी नज़र आ रहा है ना? क्यों? क्योंकि एयर यहाँ पर क्लियर नहीं है, साफ नहीं है, पॉल्यूशन है। और एयर यहाँ पर अगर क्लीन नहीं है, साफ नहीं है, then क्या होता है, हमें विजिबिलिटी जो है वो डाउन चली जाती है। एंड यू कैन से विजिबिलिटी कितनी डाउन चली गई है ना? दिस इज ऑल पॉल्यूशन। क्लियर? नाउ our next topic is the greenhouse effect. Our next important topic is the greenhouse effect. बेसिकली जो लोग समझते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट को वो बैड ही समझते हैं, बट इट इज़ द रिक्वायरमेंट। बट अगर आपको पता है कोई चीज़ अगर एक्सेस में होने लग जाती है तो ऑटोमेटिकली उसका जो है बैड इफेक्ट जो है वो काउंट होने लग जाता है। सो जिस ग्रीन हाउस इफेक्ट, दिस इज कनेक्टेड विद द ग्लोबल वार्मिंग एंड इट इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे। दैट्स वाई अब ये नेगेटिव इम्पैक्ट में जो है स्टूडेंट्स हैं और जो लोग हैं वो इसको स्टडी करते हैं नेगेटिव इफेक्ट में, बट इट इज़ द रिक्वायरमेंट फॉर द ऑल लिविंग थिंग्स। लेट अस स्टडी हाउ इट इज़। जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है बेसिकली ये होता क्या है, जो सन रेज हैं, दिन की जो सन रेज होती हैं वो हमारे अर्थ के ऊपर आती हैं, तो कुछ रेज जो हैं वो रेडिएट हो जाती हैं, यानी कि वापस हमारी स्पेस के अंदर चली जाती हैं और डिमिनिश हो जाती है वहाँ पे। लेकिन अर्थ के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस की वजह से कुछ कार्बन हीट जो है, सन की हीट जो है ट्रैप हो जाती है, रुक जाती है अर्थ के चारों तरफ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जिसकी वजह से जब सन सेट हो जाता है इवनिंग के अंदर और नाइट आती है तब भी इतना एनवायरनमेंट हमारा गर्म होता है कि लिविंग थिंग्स रह सकें। अगर ऐसा नहीं होगा, सन की लाइट्स जो हैं वो ट्रैप नहीं होगी, सन की हीट जो है स्पेशली वो ट्रैप नहीं होंगी, तो रात को रहना अर्थ के ऊपर
बहुत ही मुश्किल होगा, जो लिविंग थिंग्स है वो सरवाइव ही नहीं कर पाएंगे और लाइफ जो है यहाँ से डिमिनिश हो सकती है। सो ये क्वालिटी है कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो हीट है वो ट्रैप हो जाती है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर, और वो वार्मनेस, वो हीटनेस हमें जो है अर्थ के ऊपर नाइट में लिविंग थिंग्स को सरवाइव करने में हेल्प करती हैं। सो यहाँ से हमें क्या समझ में आया कि ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है, इस फिनोमिना को ही क्या बोलते हैं बेटा हम, ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो व्हाट वी अंडरस्टूड फ्रॉम हियर दैट ग्रीन हाउस इफेक्ट इज़ अ वेरी गुड इफेक्ट। डोंट यू फील लाइक दिस? बहुत ही अच्छा इफेक्ट है ये तो। यस, बट लेकिन ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से हम जो अभी पोल्यूशन जो हो रहा है, जो भी हम बर्निंग करते हैं, जो भी हमारा जो फ्यूल है जो व्हीकल के अंदर रन होने से बर्न होता है, जो कौन सी गैस रिलीज़ होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होती है। तो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होने के कारण जो अर्थ का जो सन की हीट है वो ज़्यादा ट्रैप होने लग गई है। तो इसकी वजह से जो अर्थ की हीटनेस है वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। अब ये प्रॉब्लम है, जब ये इतनी इंक्रीज हो गई है तो वर्ल्ड वाइज, तो इसको हमने अब क्या बोल दिया है, ग्लोबल वार्मिंग। दिस इज़ नोन एज ग्लोबल वार्मिंग। अब ये क्यों है नेगेटिव? अगर ज़्यादा हीट ट्रैप होने लग गई है तो क्यों है नेगेटिव? इसलिए नेगेटिव है बेटा क्योंकि जो हमारे ग्लेशियर्स हैं, जहाँ पर आइस ही आइस है, वो ग्लेशियर्स जो है वहाँ पर वाटर जो है सॉलिड फॉर्म में है, आइस बना हुआ है, लेकिन हीट ज़्यादा होने के कारण आइस मेल्ट होनी स्टार्ट हो जाएगी। जब आइस मेल्ट होनी स्टार्ट हो जाएगी तो कहाँ जाती है? ऑटोमेटिकली जो वाटर है वो फ्लो होकर कहाँ जाता है? ओशियन के अंदर जाएगा। जब वो ओशियन के अंदर जाएगा तो ओशियन का जो लेवल है वो राइज अप हो जाएगा, और जब ओशियन का लेवल राइज अप हो जाएगा तो आसपास का जो भी कोस्टल एरिया है वो फ्लड में आ जाएगा, फ्लडेड हो जाएगा वो एरिया, और हमारा जो लैंड है वो ओशियन के अंदर सबमर्ज हो जाएगा। अब समझ में आया क्यों नेगेटिव है? राइट। सो दिस इज नॉन एज ग्लोबल वार्मिंग। ऐसे ही जो हमारा गंगोत्री है हिमालयाज पे, वो भी ग्लेशियर्स की फॉर्म में है, लेकिन ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है अमाउंट एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है, एंड बिकॉज ऑफ दैट जो ग्लेशियर्स है, गंगोत्री ग्लेशियर्स हैं, वो वहाँ पर क्या स्टार्ट होगी? मेल्टिंग। और वहाँ पर अगर मेल्टिंग हो गई है तो क्या आएगा? कोस्टल आसपास के एरिया में फ्लड आएगा ही आएगा, जो ज़मीन है वो पानी के अंदर डूब जाएगी, एंड दैट इज़ नोन एज द सबमर्जिंग ऑफ लैंड। क्लियर? So I hope you all understood this video perfectly, and just go through these points up to the page number 258 and topic number 18.4. Just go through it, and next time I'll be sending the next part of this chapter. So keep on learning the things, keep on revising the things. Thank you so much.